Yeah. So when I'm adding this, you're getting 79, right? You can have 79 as a second, Seconds. right? Hmm. But usually when you have 79 seconds, so what you do is you convert into minutes and seconds, correct? Hmm. Correct है ना? 1 minute सर दूसरे को 19 पूछ रहे हैं, seconds. वेरी गुड. किसी को कौन बोल डाउट रहा था है उसको ये? पूछ रहे हैं. कौन बोल रहा है? कौन बोला बेटा? So I think it's Priyansh. राइट. ठीक है. मेरे को किसको बोलना है? Ivano. वेरी गुड. तेरा You कपाट wanna, बंद कर दो उधर से. if you don't answer, everybody else will answer, right? Yes. Very good. So when you convert this, what you do? 79, sorry, 79. 79 minus 60. You get 19, correct? Yes. Now why you removed 60? Because 1 minute is Equals. equal to 60 seconds, right? Yes or no? Yes, sir. So what you do? You take 19 here, you put 19 here, right? And Hmm. take one carry over on this side, right? Because it is 1 minute, so I have to carry it to the minute, right? Yes, sir. Very good. So then I remove this. I put here 19 and I put it 1 minute here, right? Hmm. This is, I just give you on the top of this, I give you just for the your help. If you don't do it, I'm still okay with it, right? Now when you add this, what will happen? 90 and 99, correct? Hai? Hmm. You'll get 99 minutes here, right? Wait. Yes. But Nine- 99 minutes is equal to what? Sir, 1 minute is equal to, 98. हाँ? 98. नहीं, 1 है ना ऊपर बेटा. Oh. 1 carry over है ना? Hmm. ठीक है. So 99 minutes is equal to, you cannot have 19 minutes, right? Minute, you cannot have more than 59, right? Because 60 minutes become 1 hour, right? Again, you have to 60 minus karo. 19 minus 60 will be what? Wait. 39. Yes, sir. Yes, And I got sir. a 1 hour here. Now 11 plus 11. Ele- 22 plus 1 will become 23. हो गया. क्या प्रॉब्लम है? Done? Done. Easy, right? Now similarly, we'll take a subtraction, right? Yes. Now can you subtract 49 from 13? No. 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 So what you need to do? You borrow 1 minute, right? When you borrow 1 minute, what will happen? This 18 will become 17, add 60. right? So you add 60 to what? 13. It will become 73. This was set. Correct. It will become 13 plus 60 you borrowed from here, right? So means that 60 plus 13, right? Yes, correct. Because you have borrowed 1 minute from here, right? Hmm. So it is 73 minus 49. So what I do is 73 minus 50 करेगा तो कितना आएगा? 23 plus 1, which is 24. Correct? This is normal subtraction you have to do, right? Now can you do, now this 18 is gone, right? Hmm. The 18 is gone. Now it has become 17. Now 17 minus 57, can you do it? No. मम्मा को You बोलो. have to borrow 1 hour from here. So you'll, मम्मा when को you borrow बोलो. 1 hour, the 17 will become what? 77, right? Yes, sir. 60 plus 17 will become 77. Hmm. And 77 minus 57, it will become 20. 20 And what you will get here? and 3. ये वही borrowed तो ऊपर क्या है? I mean 2. Very good. Correct? और हो गया. Clear है? sir, Yes? can I tell another method of solving these sums? नहीं, अभी ये समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. Very good. Another method क्या है बेटा? So that if you, in the sum besides it, if you get 76, first do first do 57 out of 60, and then add that with and then 60 out of 76. नहीं 76 है ना, 77 है ऊपर बेटा.
That is addition, subtraction. See, addition, subtraction, whatever way you want to do it, which is fine. I don't mind, right? Addition, subtraction तुमको करना है. That is not a question, right? Addition, subtraction, you all know how to do it, right? Yes. That is not a trick. वो बहुत difficult नहीं है तुम्हारे लिए, right? Only thing is to carry 160 because this is something different, right? It is different kind of a sum, right? Correct है ना? कौन है बेटा? Done, बेटा. समझ में आ गया, ईवाना? Yes, sir. Understood how to do it? Yes. Now will you able to do it? I am replacing this question. ये जो sheet है, I'll just replace this, right? Edit because it is Yes. expired ना. तो यहाँ पे इसको मैं replace कर देता हूँ, right? अब ये this will again expire in the March, right? So before that you need to submit. Correct है? This is a production on mine. It जी? doesn't say anything about expiry. It only says production. कहाँ पे? एक मिनट, ये आवाज कहाँ से आ रहा है? तो क्रियांश के साइड से कौन कौन बोल रहा है इतना जोर से बेटा? दादी दादी को बोलो बेटा मेरा क्लास चल रहा है. no when हाँ? I'm able to open it but it just says that I'm not able to type on it. बेटा ने लिखा ना अनेबल एडिटिंग, राइट? उसके ऊपर लिखा है ना, ऑन द टॉप आएगा, राइट? कैन यू शेयर योर स्क्रीन? डू यू Yes. हैव इट इज ओपन विथ यू राइट नाउ? I can open it now. You opened it? Show me your screen. Show your screen. How do I do it? Sharing ना, there is also share है ना, नीचे share का option है, right? Sure. Let's just close this हाँ. and then इवाना माँ बत्रा है screen sharing. Very good. ठीक है. तो this. यहाँ पे तुमने you shared only the where is the open worksheet किधर है? Excel. I'm just opening it. नहीं अभी नहीं बेटा, क्लासरूम से अभी डाउनलोड करोगी, ये करोगी, वो करोगी, बहुत टाइम लगेगा बेटा. ये तो डाउनलोड करो और बाद में ओपन करके मेरे को दिखाओ, ठीक है? Whenever you have problem, just download this and let me know. Correct? Keep it downloaded, keep it ready. Whenever the class is there, keep it download. You create a folder. Why you have to go to classroom again? You have to download it again, right? Why you have to download it again? You already downloaded it. You need not go to classroom, right? Let me just go to my folder. You must have downloaded it once, right? So you should open, you should store and you have to open from there. Oh, should I just open it now? I have it. हाँ तो ओपन करो, ओपन करके मेरे को बताओ कि ओपन हो गया. देन आई विल लव यू, राइट? उसके पहले मैं एक डाउट सॉल्व कर दे रहा हूँ. Okay, now understand. I did not understand how to find the area for triangle. Chapter 21. Please explain me the class tomorrow. Very good. Well, chapter 21 किसका है बेटा? Sarved. अरे 21 कौन सा चैप्टर है? Triangles. अरे मेरी जान, कौन से बुक से है? Sir, what book? कौन सा बुक? IPM का. आईपीएम, वही तो पूछ रहा हूँ, कौन सा बुक से है? आईपीएम, राइट? हाँ, चैप्टर yes. It's all opened. हाँ. हाँ, शेयर so कर स्क्रीन. about the saying that Excel product activation failed. हाँ, शेयर कर स्क्रीन. हाँ, sure. एक मिनट. हाँ, ओपन करो वर्कशीट. It's open. बेटा आई कांट सी. यू हैव टू शेयर द होल स्क्रीन. यू आर जस्ट शेयरिंग वन स्क्रीन बेटा. शेयर द होल स्क्रीन. Yes, sir. शेयर स्क्रीन करके करो तो मेरे को नीचे का भी टैब दिखेगा. यू शेयर्ड ओनली वन स्क्रीन. But आई कैन सी ओनली योर ब्राउजर. sir, how are you supposed to do it? देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड एज शेयर स्क्रीन. Sir, may I go to washroom? या बेटा. Wait. That's what I'm sharing only. शेयर स्क्रीन करके ऑप्शन होगा बेटा. शेयर स्क्रीन. I did that. Just नो, यू शेयर द विंडोज एक्सप्लोरर. one आई minute. कांट सी द होल. देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड एज शेयर स्क्रीन. होल स्क्रीन करके आएगा. Where's the share screen button? On mine, it's not entire screen. एंटायर स्क्रीन, करेक्ट.
Then make Priyansh go to the washroom. या जा बेटा. So mine is saying that only the Zoom one is the entire screen. हाँ तो एंटायर स्क्रीन करना. शेयरिंग. शेयर, क्लिक ऑन एंटायर स्क्रीन. It's not letting me. ऐसे क्यों नहीं करेगा बेटा? ऐसे थोड़ी एंटायर स्क्रीन नहीं करेगा. तेरे को एक स्क्रीन कर रहा है तो एंटायर स्क्रीन क्यों नहीं करेगा? I'm confused. I'm confused कैसे? एंटायर स्क्रीन पे क्लिक करना बेटा. शेयर एंड एंटायर स्क्रीन करो. हाँ हाँ. अभी. हाँ अभी एक्सेल दिख रहा है मेरे को. नाउ यू स्टिल शेयर द ओनली एक्सेल, राइट? हम्म. नाउ प्रोडक्ट एक्टिवेशन फेल जो दिखा रहा है ना यहाँ पे. नाउ ट्राई टू टाइप. Only this sound comes. नाउ इफ यू सी ना हियर प्रोडक्ट एक्टिवेशन फेल. हम्म. तुम्हारा लाइसेंस एक्सपायर हो गया, राइट? साइन इन करो. साइन इन Sign. करके बाद देखो कि क्या आ रहा है तुम्हारा. चेक करो ट्राइलिंग साइन इन. Is this? एक बेटा. तुम्हारा यहाँ पे नहीं बेटा, तुम्हारा पीछे यहाँ पे लॉग इन होगा कुछ तो. तुम्हारा एंटायर स्क्रीन शेयर करो बेटा, नहीं तो नहीं कर पाएगा मैं. शेयर द एंटायर स्क्रीन. Entire screen कैसे? It's not. इज योर मॉम अराउंड? Yes, he's around. कॉल करो उनको. Mom. Yes, sir. मैम इसका ना शी इज नॉट एबल टू शेयर द एंटायर स्क्रीन. शी I इज. think, sir, our license got expired. नहीं, आई एग्री. But Hmm. still she's not able to, because there is a ting ting when she's clicking on this, I'm getting a beep sound. That means there is a dialog box open at the background. But I cannot see this. So they just close all the tabs. नहीं, close all the time. Excel बंद करो बेटा. Close the Excel. Hmm. It's not letting me. You will not be able to close because there is a dialog box open. There is a dialog box open at the other end. एक डायलॉग बॉक्स आएगा. योर वर्कशीट एक्सपायर्ड और वर्कशीट हैज टेकन 15 डेज में एक्सपायर होगा, वो डायलॉग बॉक्स आएगा. Oh, that's why I didn't let it. उसको ओके करो और फिर शेयर करो. उसको ओके करो तब टाइप करने देगा वो. Do I have to do it again now? हाँ शेयर कर अभी एक्सेल. I don't know. Yeah. So I forgot to click on this. हो गया? हुआ? इवाना, Yes. हुआ क्या? Wow. Just yeah, it's just showing this. But I just click on OK now. ऊपर अभी क्लिक कर. And sign in. नहीं साइन. क्लिक 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 एनी ऑफ द येलो येलो सेल. है ना? अब टाइप कर इसमें एनीथिंग. टाइप 1 2 3 वॉट एवर यू वांट टू टाइप. Not coming still. You have to do this. हाँ हाँ सूचना लाना पड़ेगा. नहीं, साइन इन को छोड़ दो. पहले टाइप करना. टाइप नहीं हो रहा है. Time now here. एक मिनट, मेरे को कंट्रोल दे फटाफट. ओके कर. बड़ा काटी देखते हैं. उधर लास्ट में बोलूँ. इस सेल तो सिलेक्ट हो रहा है लेकिन तुम्हारा ये नहीं हो रहा, राइट? यू आर नॉट एबल टू टाइप बिकॉज योर साइन इन इश्यू, राइट? Hmm. अब साइन इन कर यहाँ पे. एक मिनट. क्या आ रहा है? पीछे आया कुछ?
Did you get to type the password? Ivana, I have to do my. हाँ तेरे यहाँ पे कुछ आया एंटर करने के लिए तेरे को पासवर्ड आया होगा ना ऐड करने के लिए, राइट? एक Hmm. स्क्रीन आया होगा पर तुमने एक्चुअली शेयर किया बेटा, एंटर स्क्रीन शेयर ही नहीं कर रही हो तो मेरे को मिलेगा ही नहीं कुछ। Hmm? व्हाई कांट यू शेयर द एंटायर स्क्रीन? No, there's no button saying entire screen. बट ये एक्टिविटी करा लो। सी एक्सेल का जो प्रोडक्शन तुम एक्टिवेशन कोड है ना, एक्सेल एक्सपायर हो गया उसको एक्टिवेशन कर। मैम है, मम्मी है, मैम Yes, sir. मैम दिस एक्टिवेशन इज फेल्ड तो योर लाइसेंस इज एक्सपायर, तो उसको यू हैव टू रिन्यू इट। Yeah, renew it. Yeah, we'll do तब तक वो quickly. नहीं करेगा उसको, राइट? Yes, अदरवाइज yes. दे विल नॉट अलाउ यू टू Write anything. राइट Yeah. एनीथिंग, राइट? Yes, sir. ठीक है, We'll do that, sir. हाँ Mm. चलो। So now you have what? IPM. चैप्टर 21। अच्छा, एरिया फॉर ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है बेटा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल? So height into breadth, hmm, height into length, बेटा किसका किसका डाउट है? किसका डाउट है? हु डाउट इट इज? वेद का डाउट है ना? hmm, तो कौन बोलेगा? width. वेरी गुड। तुमको आता है हाइट इंटू लेंथ इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल? नहीं आता, राइट? No, सर तो क्रियांश बोल सकता है हाँ बोलो बेटा। लेंथ इनटू ब्रेथ डिवाइडेड बाय 2. करेक्ट, ठीक है। अब ये कैसे आया उसका, राइट? नाउ लेंथ इंटू ब्रेथ नहीं होता है, इसके अंदर हाइट होता है ट्राइंगल में, राइट? नाउ आई विल शो यू हियर what will become. Suppose you have a triangle, rectangle में rectangle आता है तुमको? What is the formula for rectangle? Do you length, rectangle? width. लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू 2. Very good। है क्या कर रहे हैं? सर तू कहाँ से आ गया? मल्टीप्लाइड बाय Breadth into 2, width, right? लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया फाइंड करना है। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट? यस बट इफ आई डिवाइड इंटू टू पार्ट्स, राइट? इफ आई डिवाइड दिस इंटू टू, राइट? करेक्ट, Hmm. टू इक्वल पार्ट, तो ये Yes, हाफ sir. हो जाएगा, दिस विल बिकम हाफ and this यस will become half, right? And this is considered to be in triangle के अंदर, this is considered to be height, right? और इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं इसको? बेस, करेक्ट? So when you take any triangle, right now I am taking right angle triangle just for your understanding, right? When I take any triangle like this, okay, this is called as a base and this is called as the height, right? So what is the formula? Area is equal to half into base into height, correct है ना? So whatever is base is given, suppose base is given 5 and this is given height is 8. तो एरिया क्या होगा? हाफ into 5 into 8. When you consider this, cut is 4. This will be 20 centimeter square. If I say this 5 centimeter, this is 5 centimeter, correct? So area क्या आ गया? 20 centimeter square. So formula you to write half into base into height, correct? Now, if I take one triangle here, I'll give one more triangle here, right? चैप्टर 21 ट्राइंगल, ठीक है, मैं ओपन करके रख रहा हूँ मेनवाइल। किसी को सर्कल में भी डाउट था ना? सर्कल में भी डाउट था, किसी को क्वाड्रिलेटरल में भी डाउट था, किसी को एंगल में भी डाउट था। मैं सारा ओपन करके रख रहा हूँ। Something triangle, circle. 1 2 3 4 सारे चैप्टर्स में डाउट नो प्रॉब्लम, ठीक है, सारे है राइट। Sir, that सब लोग को
एक मिनट, जिससे जिसे, अरे टेंशन मत लो, जिससे से डाउट भेजा उसी ऑर्डर में लूंगा, डोंट वरी, राइट? वट एवर यू हैज पुट इट डाउट, आई विल टेक इट अकॉर्डिंग टू दैट, डोंट वरी, राइट? ये क्या कर रही है इवाना? Sorry, इवा, sir. क्या सॉरी? मैं दो दो तीन बार तो इग्नोर किया। Hmm. यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, बाद में बोलेगी बेटा समझ में नहीं आ रहा है। Paying Why you attention. have to annotate here on the group, on the screen? What is the need? Right? ना यहाँ पे जब मेंसुरेशन मैंने बताया था, आई हैव दिस पार्ट टू बी डन, जो मैंने लिखा था, राइट? मैंने लिखा था यहाँ पे एलजेब्रा इक्वेशन पेरीमीटर एरिया कराने का, राइट? नाउ हर एक का फॉर्मूला, जो मैंने एक 2 डायमेंशन शीट तुमको भेजा था, राइट? Hmm. हैव यू रिसीव्ड दिस? मैं वापस अभी स्क्रीनशॉट भेजता हूँ तुमको उसका। लेट मी शो यू हियर, राइट? कैन यू दिस फॉर्मूला? Hmm. ट्राइंगल का स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, दिस मच यू शुड नो, राइट? Hmm. नाउ फॉर्मूला मतलब क्या होता है? व्हाट एग्जैक्टली द फॉर्मूला? सो बेसिकली इट इज फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया इन पेरीमीटर, राइट? पेरीमीटर, व्हाट इज पेरीमीटर? Sir, can Advait tell? बोलो बोलो बोलो। Perimeter is the total, uh, is the total, is the total length of all of the borders of a shape. करेक्ट, ठीक है। इट्स द लेंथ मेजर ऑफ द बाउंड्री ऑफ द एनी 2 डायमेंशन शेप, करेक्ट है? Hmm. ठीक है, इट्स अ मेजर ऑफ एनी बाउंड्री ऑफ 2 डायमेंशन शेप, राइट? Sir, why can't three-dimensional shapes be measured? नहीं, अभी 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 टाइम है, लाइन पे जाओ अभी, राइट? लेट्स गो ऑन द ऑर्डर व्हाट यू हैव अ डाउट, राइट? So if you have any triangle, for example, you have triangle like this, you have triangle like this, correct? You have triangle like this right angle, correct? You have isosceles triangle Hmm. like this, right? So all this ka, you need to find the area. Suppose you have A, B, C, P, Q, R, X, Y, Z, L, M, N, correct है ना? तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? ए प्लस बी Plus प्लस B सी। plus इसका C. आंसर क्या होगा? पी प्लस Q, क्यू प्लस Q आर। plus R. सिमिलर, राइट? नाउ वेन एवर यू वॉन्ट टू फाइंड द एरिया, करेक्ट? इफ यू वॉन्ट टू फाइंड द एरिया, करेक्ट है ना? तो इफ यू वॉन्ट टू फाइंड द एरिया, इसका क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, करेक्ट है ना? Yes. ठीक है, अब इसका हाइट, इसका बेस का तो सी है, यस और नो? सो इफ आई से हाफ इंटू सी इंटू हाइट, क्या होगा? व्हाट इज द हाइट? Hmm. A plus Again. हाँ, A. नहीं, Sir, अनाया को नहीं समझा। क्या A नहीं? multiplied by एक B. एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वेट 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 अद्वैत, अनया क्या नहीं समझा बेटा? नहीं समझा। पेरीमीटर समझ में आया? नहीं सर। पेरीमीटर मतलब क्या होता है बेटा? पेरीमीटर मतलब क्या होता है? इट्स द मेजर ऑफ अ सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल द बॉर्डर्स, राइट? लाइंस, राइट? Hmm. ठीक है, अब मैं यहाँ पे तुम्हारा मेजरमेंट देता हूँ, ठीक है? ये होता है 5 सेंटीमीटर, ये होता है 4 सेंटीमीटर, ये है तुम्हारा 8 सेंटीमीटर, करेक्ट है ना? इसका पेरीमीटर क्या होगा बेटा, अनाया? 17 सेंटीमीटर। कैसे किया बेटा? जादू? 5 + 4 + 8, राइट? 17 सेंटीमीटर हो गया, है ना? एबीसी मतलब मैं कोई भी मेजरमेंट ले रहा हूँ, राइट? इट कैन बी एनी, एबीसी लिख रहा हूँ मतलब क्या होता है? इट कैन बी एनी मेजरमेंट, राइट? इट इज अ वेरिएबल, करेक्ट है ना? एलजेब्रा मैंने करा ना थोड़ा सा, इट इज अ वेरिएबल, राइट? सो दिस एक्स वाई जी कैन बी एनीथिंग, एल एम एन कैन बी एनी मेजरमेंट, राइट? ओके। उसको सबको ऐड कर दोगे तो आ जाएगा, राइट? Hmm. हाँ सर समझा। गॉट इट? सबसे नाउ पहले ये वाला मैंने बताया था कि इसका जब एरिया निकालोगे, राइट एंगल ट्राइंगल का ये हाइट है, राइट?
अब हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है मालूम है? हाँ। A number which is makes a 90 degree, a line segment which makes a 90 degree with the base, वो हाइट होना चाहिए। क्या था, इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। अब तुमने अच्छा। कभी प्लेन में ट्रैवल किया है? हाँ Yes, सर। sir. करेक्ट। तो तुम क्या होता है, वी आर एट दिस एल्टीट्यूड, या फिर कोई भी हिल स्टेशन में गए होगे, राइट? तो ये अपने ग्राउंड लेवल से इतने मीटर पे, राइट? तो क्या करता है, सीधा वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करता है। क्या करता है? इट मेजर्स द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड लेवल स्ट्रेट अप, राइट? ऐसा आड़ा टेढ़ा नहीं देखता है, इट गोज डायरेक्टली अप, राइट? ये यहां से आया, यहां से सीधा वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करता है, ये वाला, ऐसा। तो ये ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे ये 90 डिग्री पे होता है, राइट? Hmm. दैट इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट? तो यहाँ पे ये करना है, तो यहाँ से ऑपोजिट वर्टेक्स से यहाँ पे एक 90 डिग्री ड्रॉ करो, राइट? ये तुम्हारा हो गया हाइट। यूजुअली तुमको हाइट दिया जाएगा, सो डोंट वरी, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कैसे एरिया होता है, राइट? तो ये तुम्हारे हाइट आ गई, तो बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2, करेक्ट? स्क्वायर का 4 इंटू साइड, बिकॉज स्क्वायर में सारे साइड इक्वल होते हैं, ए ए ए राइट? या तो एक स्क्वायर हो गया, 2 2 2 2 आएगा, तो क्या होगा, इसका पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू 2 विल बी 8 सेंटीमीटर, करेक्ट? Hmm. एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड इज इक्वल टू क्या, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट? क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसका यूनिट आएगा साइड स्क्वायर, करेक्ट? Hmm. दूसरा रेक्टेंगल का आएगा, पेरीमीटर क्या आएगा, अगर रेक्टेंगल का है तो क्या, लेंथ, ये लेंथ है, ये बेस है, ब्रेथ है, ये ब्रेथ है, तो इसको पेरीमीटर करने के लिए क्या रहेगा, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट? तो कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, राइट? तो 2 कॉमन Hmm. निकलेगा, लेंथ प्लस ब्रेथ। नाउ लेंथ प्लस ब्रेथ कैन बी एनीथिंग, लेंथ कैन बी 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ कैन बी 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 10 और 3 डालोगे, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तुम्हारा कम हो जाएगा, तुमको आंसर मिल जाएगा, करेक्ट? और अगर मैं 10 इंटू 3 करता हूँ, उसका एरिया निकालने का है, तो 10 इंटू 3 विच इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट? Good. अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है तुम्हारा सर्कल के ऊपर। हाँ, क्या हो गया बेटा? Now I don't understand what does LB and एल बी इज लेंथ, राइट? hmm. If I take what is your height, so everybody is height. So somebody is a height 1, height 2, height 3, height 4, height 5. Like I have my some height, Ivana will some height, ठीक है? Anaya will have some height, Advait will have some height, Ved will have some height, Kriyansh will have some height, Prabha will some height, right? सारे जन का कुछ ना कुछ आ गया, आर्यन का कुछ हाइट होगा, राइट? Yes. Do राइट? you find the number? सबका सबका हाइट सेम है क्या? No. नहीं. तो क्या अनाया का हाइट क्या होगा, अनाया हाइट सपोज शी से 132 सेंटीमीटर, राइट? मैं बोलता हिरेन का हाइट क्या होगा, मैं बोला 165 सेंटीमीटर। ओके, आर्यन का हाइट क्या होगा, आर्यन का हाइट होगा 140 सेंटीमीटर, करेक्ट? Hmm. सो हर एक का हाइट अलग अलग है ना? Hmm. Sir, मैं तो तो इट इज, 154 हूँ। सॉरी मैं तो 154 हूँ। सॉरी, मैं तो 153 या 54 हूँ। कौन सा, वह कोई कुछ नहीं सर। कौन है, नाम क्या, कौन बोल रहा है, कुछ नहीं सर। कौन बोल रहा है लेकिन? अनाया। अनाया बेटा, आई एम टेकिंग एग्जाम्पल, ये एक्चुअल अच्छा नहीं सर। है, डोंट वरी अबाउट दिस, राइट? Hmm. वो बता रहा हूँ वेरिएबल का मतलब क्या होता है, राइट? हाँ सर। राइट, इट कैन बी रिप्लेस बाय एनी नंबर। चलो आई विल गिव वन एग्जांपल, अपने को ऐसे भी अलजेब्रा करना है, ठीक है? नाउ कैन यू सी माय स्क्रीन? ठीक है, आई कैन सी यू, यू कांट सी मी, राइट? यू कैन सी ऑल ऑफ देम, राइट? यू कैन सी मी, यस और नो? Yes sir. Yes, sir. व्हाट इज दिस, हाउ मेनी फिंगर, हाउ मेनी काउंट आर दिस, 10. राइट? अब मैं 1 2 3 बोलूंगा, तुमको हाँ। अपना फिंगर्स यहाँ पे रखना, यू कैन टेल एनीथिंग, यू कैन से 2, यू कैन से 3, यू कैन से 3 लाइक दिस, यू कैन से 4, यू कैन से 4 लाइक दिस, यू कैन से 6 लाइक दिस, यू कैन से 6 लाइक दिस, तुमको जो अच्छा लगता है, राइट? बट जब मैं बोलूंगा स्टॉप, उसके बाद तुमको चेंज नहीं करना उसको, समझ में आया? आई Hmm. विल चेक एवरीबडी स्क्रीन एंड मैं उसको बताऊंगा, क्लियर है? Hmm. रेडी? चलो, व्हेन आई से गो, यू हैव टू टेल मी, और सीधा बैठ, वेद, ठीक है? तो हम एवरीबडी बीच में सिट चेंज कर स्ट्रेट, सकते हैं। हाँ?
अब बीच में चेंज कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? अब बीच में चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं, जब मैंने स्टॉप बोल दिया, गो बोल दिया एक ही बार, बिकॉज आई वांट टू शो यू व्हाट इट इज, राइट? व्हाट द वेरिएबल मीन्स, राइट? आई टेल यू, थिंक ऑफ अ नंबर एंड तुमको फिंगर से मेरे को बताना विच नंबर यू थॉट ऑफ, करेक्ट है ना? रेडी? ठीक है, गो। बराबर दिखना चाहिए, वेरी गुड, ठीक है। इवाना, कीप स्ट्रेट। हाँ, straight है. What is this? I'm just thinking which number. No thinking, just keep one number. Okay. आर्यन, पूरा फिगर पे दिखाओ, पूरा स्क्रीन पे दिखाओ, थोड़ा पीछे जाओ और आई कांट सी द होल वन। हाँ, ओके, वेरी गुड। चलो, अद्वैत का Yes. 5 है, राइट? Yes. वेद का 4 है, अनाया का 9 है, राइट? ईवाना का 10 है, ठीक है? आर्यन का 8 है और क्रियांश का 6 है, करेक्ट? सबका नंबर अलग अलग आया। और 8 है. 8 है? तू तेरा ऐसे किया है तूने बेटा, ऐसे करके तो कैसे मालूम पड़ेगा? एक फिंगर डाउन है, ऐसा पूरा करना, ऊपर करना है। लास्ट फिंगर ऐसा टेढ़ा क्यों है? लास्ट फिंगर टेढ़ा क्यों है तेरा? दोनों फिंगर ऐसा रखा तो कैसे मालूम पड़ेगा मेरे को बेटा? ऐसा फिंगर करना, रखना ना, फिंगर सीधा कर। हाँ, फिर ये होता है इट। ऐसा फिंगर करेगा तो मैं क्या करूंगा? इट इज इररिलेवेंट कि तुम्हारा 8 है कि 7 है कि 6 है। व्हाट आई वांट टू हाईलाइट इज, इट इज नॉट अ नंबर कि तुम्हारा 5 है तो तुम्हारा 5 है या 3 है, राइट? व्हाट आई वांट टू शो यू इज एवरीबडी हैज गॉट अ नंबर डिफरेंट, राइट? और इट कैन बी वन विल बी ओके। एक जन ने सोचा ओके एक नंबर बताओ, राइट? ठीक है, नाउ आई गिव यू नंबर 1 to 100, राइट ऑन द चैट विच नंबर यू वांट टू राइट, राइट ऑन द चैट। Okay. एक ही नंबर, ओनली वन नंबर। 1 to 100 में कोई भी नंबर तुमको अच्छा लगता है वो लिखो। तो मेरे इधर chat disabled है. Yeah, sir. डिसेबल I'll है, check the. अरे I न्यू will पे go जाओ, हो to जाएगा। hidden sir. न्यू चैट में जाओ, हो जाएगा। Okay. Okay. 1, 2, 3. अभी मैंने भेजा, राइट? चलो, प्रियांश का आ गया, वेरी गुड। इवाना का आ गया, वेरी गुड, ठीक है। फटाफट अनाया, वेद, I search for. यार. न्यू उस पर क्लिक करो बेटा, न्यू चैट पे हिरेन देसाई को क्लिक करो, आ जाएगा बेटा। क्रियांश का आया, इवाना का आ गया, अद्वैत का आ गया, वेरी गुड। और किसका आया? अनाया, ये क्या आया? ये क्या हो रहा है? सबको 67 67 67 कैसे डाल रहे हो? हाँ, सर ने 66 भेजा. मैं 7 भेजा. मैंने 67 भेजा. मैंने 67 भेजा. एक मिनट, आर यू एबल टू सी एवरीबॉडीज नंबर? No. No, sir, because 6-7 is a meme and everyone likes it. सॉरी, 6-7 is a meme and everyone likes it. 67 इज मीन। Meme. It is very popular. अच्छा, ओके, हाँ देखो, आर्यन ने 67 भेजा है, अयाना ने अनाया 67 भेजा है, ठीक है? अद्वैत ने 67 भेजा है, सबने 67 भेजा है। ये सरप्राइजिंग है कि ऐसा नंबर कैसे आ सकता है, चलो। बट लेकिन वेद ने 66 भेजा है, प्रियांश ने 7 भेजा है, राइट? ठीक है, 7. चलो, I'll give you, wait. I'll give you 3-digit number now again, right? 4-digit number, all the 4 digits should be different, correct? चलो, all the 4 digits should be different. और Okay. कोई भी सीक्वेंस में नहीं आना चाहिए, राइट? 2 4 5 6 7 नहीं आना चाहिए, इट हैज टू बी रैंडमली प्लेस। चलो डालो, अभी देखता हूँ कैसा इक्वल होता है सबका। पागल कर दोगे मेरे को तुम लोग 67 करके। आई वाज सरप्राइज, सबका 67 67 67, ये कैसा हो रहा है? चलो, इवाना का नंबर आ गया, वेट, इवाना का नंबर आ गया, वेद का आ गया, ठीक है, आर्यन का आ गया, वेरी गुड, प्रियांश का आ गया, वेरी गुड, ठीक है, और किसका आया? अनाया का आ गया, वेरी गुड। चलो, ठीक है, अब देखो सबका नंबर बोलता हूँ,
अनया का नंबर है 1068, है जे। क्रिया Yeah. का नंबर है 6799, आर्यन का नंबर है 7985, ठीक है। अद्वैत का नंबर है 9714, ठीक है। अद्वैत तेरा नाम मेरे को दिखता है, तेरे को अलग से लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को। वेद का नंबर है 6611, करेक्ट है ना? Yes. वेद तूने ध्यान से नहीं सुना, मैंने बोला हर एक डिजिट अलग होना चाहिए, बोला था मैंने, राइट? रिपीट डिजिट नहीं चाहिए, और 4 डिजिट शुड भी अलग, राइट? ये इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज एवरीबडी इज अ डिफरेंट नंबर, राइट? Yes. Yes, And I sir. have to prove अब ridiculous मैंने number. व्हाट आई सेड, थिंक ऑफ अ नंबर, क्या बोला था मैंने? Like, दैट इज द वेरिएबल। यू थिंक 6978 अलग नंबर है, मेरे हिसाब से वो 9015 अलग नंबर है, किसी का 1067 अलग नंबर है, राइट? सबने अलग अलग नंबर सोचा, Yes, करेक्ट है sir. ना? yes. समझ में आया? It's almost the same thing. हाँ Me and Anayas is almost the same thing, only one plus. बेटा, डजेंट मैटर, वो इंपॉर्टेंट नहीं है वहां पे, राइट? दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट आई एम टू टेल यू, अंडरस्टैंड दिस। नाउ दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबल, राइट? Hmm. ओके, नाउ आई call you, that is what I think of a number, it is are different, right? क्रियाज अभी 67 क्यों डाल रहा है बेटा तू? पर अब क्या प्रॉब्लम है तुमको? सर मिस्टेकली हाँ, ठीक है। अब आई जेक थिंक ऑफ अ कलर, चलो एक कलर डालो, मैं 2-3 जन का कलर लूंगा जो डिफरेंट होगा, राइट? आई विल नॉट कॉल आउट एवरीबॉडीज नंबर, थिंक ऑफ अ कलर एंड राइट। Color. सर शुड वी चैट हाँ हाँ, चैट में ही, ठीक है। एक आ गया मेरे पास, आई जस्ट से फल 3 वॉट एवर इट इज, राइट? Very Say good. R. Okay, got it. वेरी गुड, राइट, वेरी गुड, आ गया। नाउ ये आर्यन कौन सा डाल रहा है? वर्मिलियन, ह्यूज, ये क्या है कलर? ठीक है, ठीक है, चलो एक ने डाला रेड, एक ने डाला ब्लैक, एक ने डाला मैजेंटा, राइट? ठीक है, डाला रेज रोज गोल्ड, राइट? तो ये सब अलग अलग कलर है, राइट? व्हाट आई गिव यू सम कलर, राइट? Yeah. यू थॉट ऑफ सम कलर, सबका कलर अलग अलग है ना? दैट इज वेरिएबल। वैसे ए बी सी डी इज द वेरिएबल, राइट? इट कैन होल्ड एनी वैल्यू, इट कैन होल्ड 5, इट कैन होल्ड 7, इट कैन होल्ड 25, इट कैन होल्ड 37, इट कैन होल्ड 67, इट कैन होल्ड 125 ऑल्सो, राइट? क्लियर है ना? So that is a variable, right? Now if I say, okay, अब height है, when I say height, find the area of a triangle, correct? I say find the area of a triangle, what does it mean? Or any formula, what I am writing here, जो भी फॉर्मूला यहाँ पे लिया है ना, so what they mean कि जरूरी है कि हर एक रेक्टेंगल, हर एक स्क्वायर, हर एक ट्रायंगल एक जैसा होना चाहिए? नॉट नेसेसरी, राइट? सर आई कैन नॉट सी योर स्क्रीन क्यों बेटा, क्या हो रहा है? Hiren Desai has started sharing his आएगा screen. ना बेटा, तो आएगा, वेट करो ना बेटा। Wait already came. जब मैंने से शेयरिंग स्क्रीन तो टाइम लगता है ना बेटा, में रहता है ना तू बेटा, तो बुरे से थाना जाने के लिए टाइम लगेगा ना। अब दिख सर रहा है? दिख नहीं रहा वही दिख रहा क्या दिख रहा है? Hiren Desai sharing screen. आएगा आएगा आएगा, एवरीबडी, कैन एनीबडी सी माई स्क्रीन? हाँ Yes, अभी sir. आया आएगा ना, तो टेंशन मत ले बेटा, ठीक है, आएगा, ठीक है ना। मैंने से ए प्लस बी प्लस सी, ट्राइंगल का 3 साइड्स है, Yes. ट्राइंगल है 3 साइड, यस और नो? यस। तो ए का वैल्यू है सम लेंथ, करेक्ट है ना? होगा 5, ये हो सकता है 7, ये हो सकता है 9, करेक्ट है ना? ठीक है, सबको ऐड करोगे तो आंसर मिल जाएगा। Yes. अब उसका कुछ उसका बेस होगा, कुछ हाइट होगा, करेक्ट है? तो वाइज और हाइट दिखाएगा तुमको, राइट? जब मैं सॉल्व करूंगा, ये जब मैंने खोला है तो यहाँ पे देखूंगा, राइट? अब स्क्वायर है तो स्क्वायर का सब साइड इक्वल है, यस और नो? स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, तो उसको पेरीमीटर करना है तो क्या करना पड़ेगा? साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, सिंस ऑल द साइड्स आर इक्वल, इट इज 4 टाइम्स ऑफ साइड, करेक्ट? Because all sides are equal. अब square can be of 4 centimeter,
It can be of 10 centimeter, it can be 100 meter also, right? We don't know, right? So S can be any value. Got it? So suppose if I suppose ऐसे find the perimeter of square whose side is equal to 3 centimeter, right? तो क्या आएगा? 4 into 3 is equal to 12 centimeter. 12 इसका 12 सेंटीमीटर हो गया, राइट? अगर बोलते हो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विच है साइड ऑफ 40 सेंटीमीटर, तो क्या आएगा? इट विल बी 160 सेंटीमीटर. 20 करेक्ट है? 20 centimeter. हाँ, 1 meter, no, 1 meter 60 centimeter. क्यों करना है मेरे को? मैंने पूछा है चेंज करो. No, खत्म हो गया ना. वाई वांट टू कन्वर्ट? वाई वांट टू मेक द अद्वैत? वाई वांट टू मेक इट कॉम्प्लेक्स? मैं सिर्फ समझा रहा हूं तुमको, राइट? कैसे फाइंड करने का, करेक्ट है ना? सो वाई गेटिंग कन्वर्जन? मैंने बोला कि मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो. नहीं बोला ना, जरूरत नहीं है, राइट? no. ठीक है. So what is D meaning? हाँ, What is D2 meaning? व्हाट D2? Means in हाँ, डी स्क्वायर. ये अलग है, तुम्हारे आगे आएगा, डोंट वरी, राइट? व्हेन यू फाइंड द एरिया फॉर द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, राइट? तो क्या आएगा? इट विल बी 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ 3 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 2 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया कितना होगा? 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट? अद्वैत क्या हो गया? क्या चाहिए? Nothing. तो क्यों ऊपर कर रहा है हाथ बार बार? हाँ, वाई रेजिंग योर हैंड? खेल Sorry, क्या ये? sir. Unless you want to ask your question or answer, don't raise your hand. करेक्ट? अब रेक्टेंगल है यहाँ पे, इसका आई साइड का 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर फाइंड करना है तो क्या होगा? 2 इंटू ब्रैकेट 3 प्लस 2, तो ब्रैकेट पहले सोल्व करोगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, करेक्ट? क्या है लोग? एरिया कैसे फाइंड करोगे? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितना है? 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर को रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सेम नंबर इज पावर, राइट? तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा. उसका स्क्वायर सेंटीमीटर लिखते हो या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, करेक्ट है? अब ये है फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज पाई? मैंने सर्कल का आएगा. So pi is 22 upon 7. 22 into 7 divided by 7. एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जरा ध्यान से सुनना, राइट? मेरे को उसका वैल्यू नहीं चाहिए. क्या चाहिए? आई डोंट वांट अ वैल्यू. नाउ दिस इज द बिगेस्ट इन्वेंशन इन योर ह्यूमन काइंड, राइट? ह्यूमन लाइफ के अंदर ये सबसे बड़ा इन्वेंशन है. इन्वेंशन ऑफ व्हील. क्या है? व्हील. Invention of wheel. आप सोचो कि अगर मेरा जो ये है मोटर कार है, उसका स्क्वायर व्हील है, तो क्या होगा? यहां से आएगा, फिर इट विल गो लाइक दिस, डायमंड शेप में जाएगा, और फिर फटाक से यहाँ पे आएगा वापस, तो धाम से ऊपर जाएगा, ठाम नीचे, ऊपर जाएगा, ठाम नीचे, ठाम नीचे, राइट? Like करेक्ट है this. ना? उन्होंने क्या किया? नाउ मैथमेटिशियन हैज ट्राइड फाइंडिंग द शेप विच इज स्मूथली मूव, राइट? तो उन्होंने क्या किया? दे केप्ट ऑन मेकिंग द पॉलीगॉन. पहले स्क्वायर से चालू किया, फिर उन्होंने पेंटागन किया, फिर हेक्सागन किया, फिर डेकागन किया, फिर वैसे 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 बहुत सारे 100 and thousands ऑफ पॉलीगॉन्स बनाए हैं उन्होंने, जस्ट मेकिंग श्योर दैट दे कम विद द कंक्लूजन कि ऐसा एक शेप होता है जिसका जो ये लेंथ होता है, ये जो सरकमफरेंस है ना, इसको बोलते हैं सरकमफरेंस, जो इसका जो बॉर्डर होता है और उसका जो डिस्टेंस होता है, ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, इट इज कॉल्ड डायामीटर, और ये बोलता है उसको सरकमफरेंस. उसके बीच का जो वैल्यू है विच इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है. कांस्टेंट मतलब एक फिक्स वैल्यू होता है. कोई भी टाइप का सर्कल ड्रॉ करो, उसका जो सरकमफरेंस होता है, उसका जो पाथ और उसका जो डायमीटर होता है, जो रेडियस, जो निकाल के तुम लोग, अभी तो तुम्हारे पास कंपास आ गया, पहले बार तो कंपास भी नहीं था, राइट? दे ओनली ओनली स्केल, तो स्केल से धीरे धीरे करके उन्होंने किया, तो बोला ये वाला जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, करेक्ट? और वो कांस्टेंट आ रहा है समवेयर अराउंड 3.141578 समथिंग 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 समथिंग, राइट? इट इज अ टू लॉन्गर नंबर, इट इज इरेशनल नंबर, इसका कोई एंड नहीं है.
इट इज इरेशनल नंबर, पाई इज इरेशनल नंबर। इतना बड़ा नंबर है, बट हमको यूज करने के लिए आइदर वी यूज 1.34 3.14 और वी यूज 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, राइट, टू फाइंड द एरिया, राइट। तो पाई का वैल्यू है, अगर तुम गूगल पे जाके सर्च करोगे व्हाट इज हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस ऑफ द पाई इज बीन इन्वेंटेड अप टिल नाउ, तुम अमेज हो जाओगे। मिलियंस ऑफ डेसिमल प्लेसेस उन्होंने ऑलरेडी सर्च कर दिए सुपर कंप्यूटर ने, राइट। ठीक है, सो इट्स द इरेशनल नंबर। उसके बाद तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तुमको 22/7 लेना है या 3.14 लेना है। मोस्टली 22/7 लोगे, तुम्हारा एरिया और पैरामीटर दोनों आ जाएगा, करेक्ट है। एंड ऑलवेज यू हैव टू कीप इन अ फ्रैक्शन, जो भी करना है फ्रैक्शन में रखना है, क्लियर है। ठीक है, अब तुम्हारा लेस गो विद दिस, जो इसने भेजा है, राइट, मैंने यहाँ पे ओपन किया है। ठीक है, नाम है ट्राइंगल है, ये वाला है, ये दिख रहा है, हाइट ऑफ अ ट्राइंगल। अभी ये बुक में मैंने कराया ना, मैंने ट्राइंगल भी दिखा था उसमें। चलो मैं तुमको यहाँ पे भी बताता हूँ, यहाँ पे बताने के बाद मैं तुमको एक डॉक्यूमेंट भेजूंगा। ठीक है, आई वॉन्ट यू टू रीड द डॉक्यूमेंट, अंडरस्टैंड एंड कीप इट फॉर योर दिस थिंग। द लाइन सेगमेंट ड्रॉन परपेंडिकुलरली फ्रॉम द वर्टेक्स टू द बेस ऑफ द ऑपोजिट कॉल्ड एज द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल, करेक्ट। ये वर्टेक्स है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा, ये वाला 90 डिग्री, परपेंडिकुलर इज 90 डिग्री, करेक्ट, वो मालूम है ना। परपेंडिकुलर 90 डिग्री मालूम है ना। Yes, sir. टाइप्स ऑफ Yes, लाइन sir. कराया ना मैंने, राइट। Yes. इंटरसेक्टिंग लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, पैरेलल लाइन, लाइन, ये सारी लाइन मैंने कराई, राइट। सो व्हेन यू पुट दिस लाइन, ज्योमेट्री करा तो मैं लाइन से चालू करता हूँ, लाइन दो एंगल से चालू करता हूँ सबसे पहले, राइट। तो ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा, राइट। व्हेन इट इज एक्जैक्टली 90 डिग्री इट इज कॉल्ड एज हाइट, इट इज कॉल्ड एज एल्टीट्यूड, जो मैंने बोला ना, एल्टीट्यूड भी बोलते हैं कभी कभी, राइट। ना मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, मीडियन मतलब क्या होता है, ये सामने वाले पॉइंट का मिड पॉइंट को कनेक्ट करेगा, ये और ये लेंथ सेम होगा, राइट, डिवाइड बाई टू इक्वल पार्ट्स, करेक्ट है ना। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हाइट एंड अ मीडियन। मीडियन क्या होता है, ये पॉइंट से ऐसे पॉइंट को कनेक्ट करेगा जो बिल्कुल इसको द इक्वल पार्ट पे डिवाइड करेगा, समझ में आया। सपोज देयर इज अ केक, ठीक है, इवाना तेरा भाई है ना, इवाना यू ब्रदर, राइट। अरे आर्यन की सिस्टर है ना, आर्यन तेरी सिस्टर है ना, शिव, शिरीन, Sir. शिरीन है ना। हाँ अब मम्मी क्या करी, केक लेके आई, राइट। हाँ और शिरीन ने क्या किया, स्मार्टली ये दिया। तू छोटा ना बेटा, तेरा छोटा पीस, ये आर्यन का पीस, ये शिरीन का पीस, चलेगा तेरे को। नहीं वही केक उसके मुंह पे मारेगा, राइट, क्या कर रही है, राइट, पूरा आधा कर बराबर। सो To me, that will be okay because you will करेक्ट, get तो more यहाँ पे क्या होगा, compliment ये हाफ than हो गया प्रॉपरली, करेक्ट। नाउ इट इज यस सर प्रॉपर। मीडियन क्या करेगा, ये जो लाइन है, सेगमेंट है, उसको एग्जैक्टली हाफ में। अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, ये हाफ नहीं है, ये छोटा है, ये बड़ा है, राइट। बट अपना ऑब्जेक्टिव दोनों को हाफ में डिवाइड नहीं करना, अपने को ऑब्जेक्टिव क्या है, परपेंडिकुलर होना चाहिए, राइट, ये अपना ऑब्जेक्टिव, बिकॉज यू वांट हाइट, करेक्ट है। yes. यस सर तो डिपेंडिंग ऑन के तुम्हारा रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से तुम उसको काम करोगे, राइट। इसका फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, करेक्ट। अब तेरा क्वेश्चन नंबर कौन सा था जो तेरे को डाउट था बेटा। सर सर्कल का क्वेश्चन नंबर 10। नहीं नहीं, ये एरिया ऑफ अ ट्राइंगल चैप्टर 21। अभी मैंने समझा दिया तेरे को। यस। अब यहाँ पे देखता है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स द ट्राइंगल कैन हैव, एनी ट्राइंगल, ये मैंने तुमको क्वेश्चन पूछा जब मैंने सिखाया था, राइट। एनी ट्राइंगल कैन हैव मिनिमम टू एक्यूट एंगल्स, राइट, क्योंकि अगर ऑब्ट्यूस एंगल भी क्रिएट करेगा, एक प्रॉपर्टी जो हर एक ट्राइंगल में कॉमन है, वो क्या होती है? झालं आता काय तू सांगितलं रेग्युलरली का अरे ते क्या हो गया, जरा सगळीकडे प्रियांश, म्हणून सर प्रियांश, काढलं ना मेरे यहाँ से नहीं आवाज आ रही है तो कहाँ से आवाज आ रहा है इतना। सर मेरे इधर से था कौन, मेरे इधर से क्या हो गया, कौन चिल्ला रहा है इतना। सर वो भी बात कर रही थी अच्छा, सामने से पूछो ओके। कॉलिंग है मम्मी को बोलो, सामने कैमरे के सामने जो मम्मी बैठी ना, वो बहुत खतरनाक छोड़ दो है ना। ठीक है, अब देखो ये ट्रायंगल है यहाँ पे, अक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है, जस्ट रीड दिस, वेद रीड कर।
types of triangles. One property is common to all types of triangle. Sum of all interior angle is add up to 180 degrees. करेक्ट, दैट मीन्स ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल 180 होगा, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल 180 होगा, करेक्ट, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल 180 होगा, किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो, राइट, 180 होगा, होना ही होना है, अदरवाइज वो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, राइट। तो ये कॉमन प्रॉपर्टी है उसमें। अब एक ट्रायंगल में, ओके, मेरे को बताओ अक्यूट एंगल कितना होता है? Less than 90. 0 के 90 के बीच में होगा, राइट। राइट एंगल क्या होगा? Exactly 90, nothing else. 90 degrees. ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा? वो between 180 degrees and 90 degrees. अरे ये कौन बोला? Ved. वेद। उल्टा जा रहा है, पाकिस्तान में पैदा होता है क्या? बिटवीन 180 90 उल्टा कैसे होता है? बिटवीन 90 टू 180 होता है, राइट। Yes. छोटा नंबर पहले होता है, करेक्ट है। Yes, sir. सपोज मैंने एक ऑब्ट्यूस एंगल ले लिया, राइट, आई वांट टू क्रिएट एन ट्राइंगल। मेरे को ट्राइंगल बनाना है, एक एक्यूट एंगल चाहिए, एक राइट एंगल चाहिए, और मेरे को एक ऑब्ट्यूस एंगल चाहिए, राइट, ठीक है ना। लेट्स मेक इट वन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कितना हो सकता है? छोटा से छोटा एक्यूट एंगल बनाओ, सारे छोटे छोटे एंगल ले लो, राइट। एब्सोल्यूट छोटा एंगल 1 डिग्री हो सकता है, 1 डिग्री एक्यूट एंगल हो सकता है ना, Yes. राइट। राइट एंगल, छोटा से छोटा राइट एंगल है ही नहीं, राइट, छोटा या बड़ा इसमें कुछ नहीं, इसमें 90 होना पड़ेगा, राइट। Yeah. और इसमें मिनिमम ऑब्ट्यूस एंगल बना लो, कितना होता है? मिनिमम से मिनिमम 91 डिग्री होगा। Yes. टोटल कितना हो गया? Uh, what, sir? टोटल कितना हो गया? 182. हो नहीं सकता ना, मैंने सबसे छोटे एंगल लिए सबके, राइट, सबसे छोटा एक्यूट एंगल लिया, सबसे छोटा ऑब्ट्यूस एंगल लिया, तभी भी 180 हो रहा है, राइट। तो क्या होगा? सपोज आई एम टेकिंग वन राइट एंगल, ठीक है, आई टेक वन राइट एंगल, इसी के क्या आना चाहिए? राइट एंगल कितना होता है? 90. 90 degrees. एक ऑब्ट्यूस एंगल लेता है, ऑब्ट्यूस एंगल में कैलकुलेशन लेता हूँ 80, करेक्ट, करेक्ट। अब ये आ गया, और मैं ये ले रहा हूँ अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल में ले रहा हूँ 50 डिग्री, राइट, ठीक है। अब मेरे को बाकी बाकी कितना बच गया? व्हाट इज द बैलेंस हियर? 101. 80 बच गया, यहाँ पे 90 बच गया। Sir, I didn't understand. मेरे को एक ट्रायंगल बनाना है, करेक्ट है ना? Sir, I did not अरे understand. वही समझा रहा हूं मैं तेरे को, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? आई वांट टू मेक ए ट्रायंगल, राइट। Yes. ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल ऐसा है जिसके मैंने एक ऑब्ट्यूस एंगल है, ये फर्स्ट नंबर का ट्रायंगल है, राइट, सेकंड नंबर का ट्रायंगल है, और ये थर्ड नंबर का ट्रायंगल है, करेक्ट है। Yes, sir. उसका एक एंगल 100 डिग्री हो गया, एक एंगल ही मैं डिफाइन कर रहा हूँ अभी, राइट। इसका 90 डिग्री राइट एंगल का, करेक्ट, और इसका 50 डिग्री ले लिया, राइट। अब एक एंगल तो चला गया, अब ट्रायंगल के लिए बाकी टोटल कितना होता है? 180 होता है ना, 180 Yes. होता है, राइट। Yes. तो व्हाट इज द बैलेंस? मेरे पास दूसरे कितने एंगल में कर सकता हूँ? कितना बच गया मेरे पास? 100 तो चला गया, राइट। तो यहाँ बैलेंस 80 बचा, Yes. यहाँ बैलेंस 90 बचा, ये बैलेंस 130 बचा, राइट, Yes, sir. करेक्ट है। अब क्योंकि 80 है, मेरे को यहाँ पे दो एंगल करना है, तो दोनों एंगल का सम 80 होगा, तो दोनों अक्यूट एंगल होने चाहिए, यस और नो? Yes. वेरी गुड। अब 90 हो गया, इसमें से मेरे को दो एंगल करने के हैं, तो ये दोनों अक्यूट एंगल Okay. होगा, क्योंकि अगर दो में डिवाइड करूंगा, वॉशरूम जाके आओ। दोनों अक्यूट एंगल बनेंगे, राइट। जा क्रियांश वॉशरूम जाके आए। हाँ जा। और ये वाला है, इसमें 130 में से मेरे को दो एंगल बनाने का है, करेक्ट है ना। Yes. बट यहाँ पे मैं ऑब्ट्यूस एंगल भी बना सकता हूँ, यहाँ पे कॉम्बिनेशन मेरे पास क्या है? मैं 120 प्लस 10 कर सकता हूँ, Yes. या 90 प्लस 30 कर सकता हूँ, 90 प्लस 40 कर सकता हूँ, या मैं 70 प्लस 60 कर 50. सकता हूँ, 60. करेक्ट है ना। Yes. लेकिन देखो, अगर ऑप्टिक्स एंगल ले लिया तो ये भी एक्यूट हो गया, ये भी एक्यूट हो गया, ये मैंने राइट एंगल कर दिया तो ये भी एक्यूट हो गया, ये भी एक्यूट हो गया, और तीनों तीन भी एक्यूट हो सकता है, राइट। Hmm.
Yes. तो कोई भी ट्रायंगल में मिनिमम टू मिनिमम दो अक्यूट एंगल होते ही होते हैं, करेक्ट? Yes. एनी ट्रायंगल विल ऑलवेज हैव एटलीस्ट टू एक्यूट एंगल। वही Okay. हमें पूछा है, राइट? दैट इज व्हाट एग्जैक्टली ही आस्क हियर, राइट? Yes. एनी ट्रायंगल एक्यूट ट्रायंगल मिनिमम टू एंड मैक्सिमम थ्री, करेक्ट है? एक्यूट एंगल तुम्हारा तीन होगा। मैक्सिमम कितने राइट एंगल हो सकते हैं? एक राइट एंगल हो सकता है। Hmm. कैन आई क्रिएट ए ट्रायंगल विद वन राइट एंगल और वन एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल? नहीं कर सकता हूं, क्योंकि Nine. राइट एंगल 90 होता है एंड ऑब्ट्यूज एंगल 90 से प्लस होता है, तो दोनों 180 के ऊपर चले जाएंगे, राइट? हाँ. Yes. ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोग को यहाँ पे द सम ऑफ द टू एंगल्स इज 90 डिग्री, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इट इज? Uh. ये दोनों का 90 हो गया अभी जस्ट मैंने बताया, राइट? तो बचा कितना? 90 बचा, विच इज थर्ड एंगल, विच इज राइट एंगल, Hmm. करेक्ट है? करेक्ट है. Now what are the measure of the right angle isosceles triangle? राइट एंगल मतलब क्या होता है? 90 डिग्री एक होना चाहिए। आइसोसेलेस मतलब दो साइड इक्वल है, तो दोनों दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। Hmm. तो जब एक राइट एंगल 90 डिग्री निकल गया यहां से, बाकी के बच्चे कितने? ये दोनों का सेम एंगल होना चाहिए और दोनों का एडिशन 90 होना चाहिए, तो क्या होगा? 45. 20. करेक्ट है ना? Yes, समझा. 90 45 45 सिंपल है, राइट? Hmm. ठीक है ना? क्लियर है? Yes. अब Sir, तुम, what do you use pi for? हाँ, What do you use pi for? व्हाट डू यू? What do you use pi? पाई क्या होता है? No, pi. पाई 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 Yes. पाई सर्कल में यूज होता है। पाई मैंने क्या होता है? इट्स द कांस्टेंट रेशियो बिटवीन सरकमफरेंस विच इज उसका पेरीमीटर और उसका डायमीटर के अंदर का जो रेशियो, उसको पाई बोलते हैं। इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। उसकी Hmm. वैल्यू तुमको सिर्फ याद रखनी है 22/7 अभी के लिए, और जब बड़े हो जाओगे डेसिमल जब आएगा तो ये वाला वैल्यू भी तुम यूज कर सकते हो, करेक्ट है? Yes. ठीक है, चलो अभी क्लियरली आगे जाए इसके अंदर। ठीक है, अब तुमको क्या करना है नेक्स्ट फ्राइडे के लिए? आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस नेक्स्ट थर्सडे के लिए। यू हैव टू रीड ऑल दिस क्वेश्चंस। देखो मेरे पास यहाँ पे ना बहुत कम नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, राइट? सिंपल है। मेरे पास मैंने बहुत सारी चीजें की हुई है। ठीक है, ये सारा सॉल्यूशन मेरे पास लिखा हुआ है। आई कैन सेंड यू बट आई विल नॉट सेंड यू राइट नाउ। आई वॉन्ट यू टू कैलकुलेट। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द बेस ऑफ 12 एंड हाइट आया, मेरे को एरिया फाइंड करना है। एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। बेस की वैल्यू क्या दी है? 12 दिया है, बेस की वैल्यू 12. और हाइट वाला दिया है 14, राइट? Hmm. मैंने कट कर दिया यहाँ पे 7, 12 7 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो बेसिकली सर हम लोग को डिवाइड करना है ना 2 से. क्रॉस बेटा, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना नहीं सिखाया मैंने? हाँ सर. सिखाया ना? तो ये फ्रैक्शन है ना, राइट? हाँ हाँ. बस तो Hmm. करेक्ट है। ठीक है, क्लियर? अब तुम्हारा दूसरा डाउट कहां पर है? ये सारी चीज देखो, डायमीटर ये 22/7 लिया, देखो पाई का वैल्यू दिया है। ठीक है, ठीक है। अब तुमको इसको सॉल्व करने के लिए अलजेब्रा, क्योंकि वेरिएबल नहीं समझ आया, अभी तुमको वेरिएबल समझ में आया? Yes. एनी वैल्यू, राइट? Hmm. नाउ देखो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग ने भेजे हैं, राइट मेरे को। नाउ आई कैनॉट सॉल्व ऑल ऑफ देम, लेकिन अभी मैंने जितना एक सेशन में, क्योंकि अभी तुमने 2 महीने का पूरा सब एक साथ भेज दिया है ना? करेक्ट है ना? Hmm. तो एक साथ तो सारी सॉल्व कर नहीं पाऊंगा मैं एक सेशन में। तो मैं जितना सॉल्व किया है मैं लिख देता हूँ। करे ये टाइम हो गया इतना खत्म। ठीक है, ट्रायंगल समझ में आ गया इतना बेटा? Yes. वेद, समझा मुझे. वेरी गुड। ठीक है, तो मैं डन लिखता हूँ यहाँ पे। एंड एवरीबडी वॉट एवर यू हैव डन, प्लीज सेंड मी द डाउट इन अ चैप्टर वाइज, ठीक है ना? ठीक है, डन। मैं ले लेता हूँ, ठीक है ना, एक में एक। मैं अभी दूसरा, उसके बाद कौन है? हु इज द नेक्स्ट? ठीक है, चैप्टर 16 ये एस चांद का है, राइट? हम्म.
ओके, देन मैं आता हूँ एस चांद के ऊपर। ठीक है, बोर्ड मास का 11। ये कौन सा है? सर्कल। ये मैंने अभी ले लिया 1780। अभी तू ट्राई करेगा बेटा? ठीक है, विल यू बी एबल टू ट्राई? Yes, sir. तू ट्राई करेगा? चलो मैं देख देता हूँ। क्वाड्रेटल में 1718, राइट। बोर्ड मास में ट्राइंगल में 16 और 12, 6 और 20, राइट। Hmm. क्या लिखा है? सम ऑफ द टू एंगल्स ऑफ राइट एंगल। ये अभी मैंने कराया, राइट। ये सॉल्व अभी कराया ना तेरे को मैंने। Yes. अभी क्यों राइट एंगल आता है, समझ में आया? Yes. और मैंने तेरे को पहले वो भेजा था, तूने उसको रिफर नहीं किया, इसी के लिए नहीं आ रहा, राइट। अभी ये 20। ऑन अ ट्राइंगल ड्रॉ अ प्लेन ग्राउंड, वन बॉय पोस्टेड ईच वर्टेक्स ट्राइंगल, रिमेनिंग स्टूडेंट अरेंज द थ्री साइड्स ऑफ a triangle that the number student each is 10, right? What is the total of student, total number of student? उससे क्या बोला? हर एक वर्टेक्स को डाल दिया, राइट उसने, और Hmm. 10 होना चाहिए, राइट। तो वर्टेक्स पे एक एक नंबर डाल दिया, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या दिया? 1 8 1, ये 10 हो गया। Hmm. ये 1 8 और 10, 1 10 हो गया, 1 8 और 1, राइट। तो उसको तुमको ये पजल टाइप है, राइट, कि तुमको ऐसे नंबर डालो कि साइड का टोटल तुम्हारा, एक साइड का टोटल 10 होगा, करेक्ट है? 9, ठीक 18. है, सो इट्स अ काइंड लॉजिकल आंसरिंग, राइट। Hmm. ठीक है, तो मैं क्या करता, अगर 2 7 और 2 लिख के देख, नहीं आएगा। और 2 6 और 2 लिख के देख, आएगा ना, करेक्ट है Hmm. ना। अब यहाँ पे क्या आ गया? प्लेग्राउंड, वन बॉय इज पोस्टेड ऑन ईच वर्टेक्स। एक बॉय यहाँ पे रह गया, उसे बोला है वन बॉय यहाँ पे, राइट, वर्टेक्स पे डाल दिया, राइट। Hmm. और बाकी के स्टूडेंट तुम लोग ने साइड पे डाल दिए, इक्वल नंबर स्टूडेंट, जैसे टोटल तुम्हारा 10 होगा, करेक्ट। तो 1 1 तो आ गया, बाकी बचा क्या? 8 8 8, करेक्ट है ना, 10 करने के लिए। समझा? Yes. ये इतना डिफिकल्ट नहीं था बेटा, इसको कोई ट्राइंगल से लेना देना नहीं है, ठीक है। बट चलो, मैं बाकी का समझाता हूँ। 17 18 क्वाड्रेटल, राइट, क्वाड्रेटल 17 18, क्वाड्रेटल 17 and 18। लेट मी चेक। 17, हाँ, इसमें क्या होता है? हाउ मच, इसमें क्या लिखा है? हाउ How much is the sum of the perimeters of the shaded square less than the sum of the perimeters of the unshaded squares? Each small square has side 1 centimeter long. वेरी गुड, करेक्ट। पेरीमीटर मतलब एक स्क्वायर लिया मैंने, Hmm. करेक्ट। इसका पेरीमीटर क्या आएगा? 1 2 Hmm. 3 4, 1 2 3 4, इस Hmm. 1 2 3 4, कितना होगा? 12 हो गया। Hmm. अनशेडेड का कितना होता है? Unshaded अनशेडेड का is पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री, करेक्ट है ना। hmm. तो इसमें कितनी बाउंड्री आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, करेक्ट है, Hmm. करेक्ट है ना। अब Yes. क्या बोला, लेकिन ये बाउंड्री नहीं बोला, उससे क्या बोला है? हाउ मच इज द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड स्क्वायर्स लेस देन द पेरीमीटर ऑफ अनशेडेड स्क्वायर्स, राइट। स्क्वायर पूछा है, उसे शेप नहीं पूछा है, करेक्ट है ना। Hmm. Yes. उसे क्या पूछा है? Uh, स्क्वायर पूछा है। क्या पूछा है? square. तो स्क्वायर मतलब इसका पेरीमीटर मेरे को लेना पड़ेगा अलग से, इसका पेरीमीटर अलग से लेना पड़ेगा, इसका अलग से लेना पड़ेगा, इसका अलग से लेना पड़ेगा, इसका अलग। उससे शेप बोला होता तब मेरे पास पेरीमीटर का अलग वैल्यू था, राइट, तब मैंने ये कैलकुलेट किया, ऐसा आएगा, राइट। लेकिन क्योंकि उसने स्क्वायर बोला है, तो कितना हो गया? टोटल 9 स्क्वायर है, उसमें 3 शेडेड है, कैंसिल 3 अनशेड, राइट। तो ये क्या होगा? ये शेडेड है 1 2 3, ये तीनों तीन को उसे कैंसिल कर दिया, बाकी बचे कितने? इतने, राइट। Hmm. 4 इंटू 3 12, खत्म, राइट। Hmm. क्या होता है? द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर। बहुत इजी है। क्या बोल रहा है? पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है अद्वैत? With all of the sides equal. हाँ, With all of the sides equal. करेक्ट, ऑल साइड्स आर इक्वल है, बराबर है।
तो मैं साइड को समझ लेता हूँ, उसका साइड होगा, मैं एक टी ले लेता हूँ, करेक्ट। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, इसका टी, इसका टी और उसका टी, राइट, करेक्ट। अब स्क्वायर होता है, उसका क्या लिखा है उसने? That each side is 6 centimeters. So 24 centimeters the perimeter of the square. करेक्ट। इसका पेरीमीटर कितना होगा? 24। Yes. उससे क्या बोला है? पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो इसका भी पेरीमीटर 24 होगा, राइट। Yes. ठीक है। और स्क्वायर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड? अब इसको 24 को मेरे को 3 में डिवाइड करना है इक्वली। Yes. कितना आएगा? 8 सेंटीमीटर। Hmm. खत्म हो गया किस्सा, राइट, Yes. है ना। तो ये क्या क्या? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ साइड, करेक्ट। ये फर्स्ट कंडीशन दी थी उसने। तो 3 इंटू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 4 इंटू साइड ऑफ अ स्क्वायर, करेक्ट है ना। मैंने इक्वल कर दिया, राइट, दोनों का फॉर्मूला मैंने डाल दिया। 24 आ गया, साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर, करेक्ट। ये भी सॉल्व हो गया। आज तीसरा क्या है जरा? Hmm. 1 to 10, राइट। Then circle 1 and 10. सर्कल 1 and 10, ठीक है, मैं सर्कल में जाता हूँ। लेट मी गो टू सर्कल। मैं इसको बंद कर दूं अभी, ये ट्रायंगल और उसका, ठीक है। ट्रायंगल का इसमें वेद तेरा प्रॉब्लम नहीं ना बेटा? वेद, Yes, sir. नहीं है डाउट। ट्रायंगल में नहीं, राइट। ट्रायंगल में समझा सब, एरिया सब समझा। ठीक है, ये सर्कल है, क्वाड्रेटल भी हो गया, क्वाड्रेटल पे बंद कर देता हूँ, राइट। Hmm. सर्कल में 1 और 10, राइट। Hmm. 1, वेरी गुड। अब इसे क्या पूछा है? इन द गिवन डायग्राम equal circle are drawn in the rectangle. Length and the breadth of a rectangle is 40 and 20 सेंटीमीटर, राइट, करेक्ट है ना। इससे 40 सेंटीमीटर लिया, राइट, यहाँ पे ऊपर वाला ये 40 सेंटीमीटर लिया और नीचे 20 सेंटीमीटर लिया, राइट। Hmm. उससे क्या वाला है? ये 40 and 40 है, राइट। ये देखो ऊपर ऊपर 40 40 लिखा है, लेकिन इसमें गलत है, राइट। Hmm. 40 सेंटीमीटर ईच, क्या बोला है? Each. Length and the breadth of the rectangle are 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो ये 40 है, ये 20 है, ये 40 है, ये 20 है, राइट, ऐसा लिख रहा है, राइट। वो व्हाट इज द रेडियस ऑफ ईच ऑफ दिस, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है? 20 सेंटीमीटर तो बड़ा डायमीटर हो गया, Hmm. करेक्ट है ना। ये टच कर रहा है ना दोनों का, राइट। Hmm. डायमीटर इज अ टचिंग पासिंग थ्रू द सेंटर, राइट, यहाँ सेंटर से पास होगा। और हाफ इज इक्वल टू रेडियस। तो ये 20 है, यहाँ पे लेंथ कितना है इसका? 20 है। ये और ये सब सेम होगा, राइट, Yes. करेक्ट है ना। ठीक है, Hmm. correct है? Hmm. ठीक है। तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया? 20 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू सेंटीमीटर, करेक्ट। 10 निकालो। 10th वाला क्या है? 10th वाला रॉन्ग आंसर, रॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। इधर रॉन्ग क्वेश्चन, इन्होंने डॉट मार्क किया ना, उसका मतलब रॉन्ग है, राइट। Hmm. इसका आंसर, इसमें कोई आंसर ही नहीं है, ठीक है। और बोर्ड मास का क्या है? बोर्ड मास का कौन सा नंबर है? बोर्ड मास 10th वाला। तो सर्कल भी हो गया क्लियर। Hmm. बोर्ड मास का नंबर क्या है जरा? 11। और तेरा 11. 5 है और 11 है, राइट, Hmm. ठीक है, ठीक है। Otherwise, रिवीजन ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन अबाउट द वर्टाइसिस फेसिस एंड एजेस कंप्यूटर, बेटा ये इसका है ना, ये वाला है, राइट। Hmm. क्वेश्चन नंबर ये वाला, राइट, चैप्टर नंबर 16 and 14, करेक्ट है ना। Hmm. ठीक है, तो चेक, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, दिस आई एम टेकिंग। ओके, वेद का क्वेश्चन नंबर 5, बोर्ड मास, बोर्ड मास, क्वेश्चन नंबर 5, सर ठीक है। सर उसका भी है, जो हाँ, असाइनमेंट तुमने भेजा था उसका। किसका? जो असाइनमेंट तुमने भेजा था। किससे भेजा था? असाइनमेंट। क्वेश्चन 5, अच्छा, बोर्ड मास असाइनमेंट, यस। ठीक है, मेरे वाइट उस पे, ठीक है। चलो, बोर्ड मास 11, इसका 11 देख लेता हूँ।
तो मेरे बोला ना आपका असाइनमेंट बोलो, मॉम का असाइनमेंट क्लासरूम में। चलो लिखा था तूने, लेकिन ये कौन सा वाला क्वेश्चन था बेटा? 11, राइट? हाँ। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे सिलेक्ट आना चाहिए, राइट? तो पहले क्या करो, डिवाइड करो। करेक्ट, इट इज डिवीजन, राइट? पहले डिवाइड करोगे उसको, +5 करोगे, राइट? ये दरवाजा खोल। राइट है ना? या तो तुम यहाँ पे क्या लिखा है, 5 5 5 = 6 आना चाहिए, करेक्ट है? तो यहाँ पे ये डाल के देखो पहले, ये इज इक्वल टू यहाँ आएगा नहीं, करेक्ट है ना? ये लिखा है उसने, राइट? ये आंसर आना चाहिए तुमको। यहाँ इज इक्वल टू प्लस, और डिवाइड करके देखो, 5 ÷ 6 होगा? नहीं होगा, तो ये आउट हो गया, करेक्ट? प्लस, डिवाइड एंड, ये मैं लास्ट में लेता हूँ, बट यहाँ पे लेता हूँ मल्टीप्लीकेशन, राइट? आई टेक एट द एंड। जो करेक्ट है वो लास्ट में लेता हूँ, राइट? मैं दूसरा डाल के देखता हूँ, राइट? यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई प्लस, राइट? इसको मल्टीप्लाई प्लस करोगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई एंड प्लस, तो कितना होगा, 25 + 5 30 हो जाएगा, तो 6 तो नहीं आएगा, तो ये भी आउट हो गया। अब ये डाल के देखो, 5 + 5 ÷ 5 = 6 हो रहा है। पहले क्या करोगे, डिवाइड। 5/5 डिवाइड करोगे, तो 5 + 1 = 6, करेक्ट? हो गया, समझा? हम्म। वेरी गुड, ठीक है। सो ये भी जरा क्लियर हो गया, बोर्ड वाज भी, ठीक है। सो ऑल व्हाट यू हैव पोस्टेड ऑन द आईपीएम पार्ट विच इज क्लियर, राइट? सो दिस इज क्लियर। देर आर रिपीट इन बोर्ड मास सम्स 12 13 14, ये कौन सा है? सर क्लासरूम का। 12 13 14 मैंने दिया ही नहीं है। एक मिनट, 15 ओए, 15 some. Sir, the class. The class खत्म हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या ठीक है, हो दिस इज सॉल्व। मैंने 10 ही क्वेश्चन दिया, 11 12 13 कहाँ से आ गया तेरे को? क्या? हाँ, 15 दिया है। 15 दिया है मैंने। हाँ सर 15 दिया है। 15। अच्छा, इतने सारे क्वेश्चन दे दिए मैंने तुम लोगों को? यस। हाँ तो but in last class you were saying मेरा हो गया वो सर। वेरी नाइस बेटा, कौन किसका हो गया? प्रियांश। वेरी गुड, I'm doing it. सर मैंने 5 मिनट में कंप्लीट कर दिया। वेरी गुड बॉय, तू अच्छा ही है, मैं कहाँ ना बोल रहा हूँ, मैं कहाँ ना बोल रहा हूँ, यू आर ऑल गुड स्टूडेंट। प्रैक्टिस नहीं करते हो, तू आलसी है एक नंबर का, इसके लिए प्रॉब्लम है, बाकी कोई थोड़ी प्रॉब्लम है मेरे को तेरे से। अच्छा, ये बेटा मेंटेन करेगा, इफ यू टू मेंटेन दिस स्टैंडर्ड, यू टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इट, राइट? अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा तो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये वाला प्रॉब्लम है, यस। ठीक है। और कौन सा रिपीट बोल रहा है तू, ये वाला? हाँ 12 13 14। तो छोड़ दो उसको, रिपीट है तो मत करो। वही किया वही किया। बस ठीक है, हो सकता है, आदमी गलती कर सकता है, ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे लेता हूँ बोर्ड मार्क्स में। क्या सर खत्म हो गई क्लास? बोला मैंने खत्म हो गई, नहीं। तो फिर मेरे को आना है बेटा, रात को 10 बजे तक रुकना है, नहीं। तो चुपचाप बैठ, ठीक है। यहाँ पे क्या सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेगा? यस। तो क्या? Yes. 15। हाँ 25 25 इंटू 3 3 डिवाइड बाय, डिवाइडेड बाय 15 minus 28। वेरी गुड, Hmm? करेक्ट। यस। अब क्या आएगा, पहले डिवाइड करना पड़ेगा, यस। तो क्या आएगा, 25, 3 ÷ 15 क्या होगा?
1/5 Yes. minus 28 That's 5. क्या 3 divided by 15 is 5. 3 डिवाइड बाय 15 15 डिवाइड बाय 5 नहीं है Oh, sorry. करेक्ट है तो फ्रैक्शन में Yes. 3 डिवाइड बाय 15 आई कैन राइट इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसे हो सकता है Yes, sir. ओके अब ये मल्टीप्लाई करोगे Yes. फ्रैक्शन ऑफ अ क्वांटिटी मैंने सिखाया ना हाँ. इट विल 5 तो क्या आएगा 5 माइनस 28 मैंने नेगेटिव नंबर इंटीजर भी सिखाया है Yes. आंसर क्या आएगा माइनस -3. हो गया वेद Yes, sir. इसमें देखो बोर्ड मास है फ्रैक्शन है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है क्वांटिटी फ्रैक्शन है इंटीजर है सब कुछ है एक कितने सम में छोटे सम में सबके कंसेप्ट यूज होते हैं राइट Yes, sir. दैट इज वाई गिव यू दिस क्वेश्चन मेरे अगर बोर्ड मास के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो तुमको आगे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा समझ में आया Yes. क्लियर ये वाला ये भी सॉल्व हो Value of mass. हाँ Sir, are all these topics taken for board mass? बेटा तो फिर मैं कैसे असाइनमेंट दिया तुम देखते होगे यहाँ पे कैन यू सी हियर जो मैंने पोस्ट किया हुआ है ये ट्रायंगल मैंने ड्रॉ करने के बाद ट्रायंगल कैसे होना चाहिए क्या होना चाहिए ये बोर्ड मास का ये देखा नहीं तूने डू यू रिमेम्बर यू आर देयर इन दिस क्लास Yes. तो फिर ये बोर्ड मास नहीं तो ये क्या है इसी में क्लासरूम में यहाँ पे डालता हूँ राइट ये क्या है ये बोर्ड मास नहीं तो क्या है So Ivana has a doubt. क्या डाउट बेटा What do you एक बेटा अद्वैत को देख रहे था अद्वैत तू आया था बोर्ड मास के लिए Yes. हाँ प्रेजेंट था तो फिर क्यों एक क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है फिर Sir, that is not what I wanted to ask. It is that if you are not good at what all you are taking, will we not be good in board mass? सॉरी That means if you are not good in all of these topics, will we not be good in board mass? नहीं तो उससे क्या फर्क पड़ता है बेटा मैं तूने पूछा क्या सर आई हैव टेकन बोर्ड मास तो मैंने लिया है करेक्ट Hmm. बेटा यू वांट टू बिकम अ टीचर यू वांट टू बिकम अ स्टूडेंट राइट नाउ क्यों ज्ञान देता है बेटा हमेशा राइट Hmm. तो नीड राइट Hmm. तूने पूछा सर आई हैव टेकन अ बोर्ड मास आई हैव टेकन अ बोर्ड मास तेरा क्वेश्चन क्या था राइट Hmm. मैंने पूछा तू प्रेजेंट था सो व्हाई यू आर टू अननेसेसरी कंफ्यूज राइट Hmm. हाँ बोलो इवाना क्या डाउट है बेटा I don't understand what is a fraction in the ball mass. फ्रैक्शन है बोर्ड मास बेटा फ्रैक्शन तो मल्टीप्लिकेशन है डिवीजन है एडिशन सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन तो सब कुछ कराया मैंने राइट फ्रैक्शन का एडिशन आता है फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन आता है फ्रैक्शन का डिवीजन आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैंने कराया है प्रैक्टिस करोगे तो आएगा बेटा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा है ना आई हैव टॉट एवरीथिंग और इसी के लिए दे रहा हूँ तुम्हारा डाउट जब आए तब डाउट भेजियो तो एटलीस्ट मेरे को समझ में आएगा तुमको क्या चीज नहीं समझ में आनी है राइट ट्राइंगल कराया था एंगल्स कराया था लाइंस कराया था सब कुछ कराया मैंने Hmm. उसके बाद एरिया पेरीमीटर का फॉर्मूला भी बताया था सब कुछ भेजा मैंने अभी मैं भेज रहा हूँ वापस भेजता हूँ राइट अगेन आई सेंड मैं ट्राइंगल भी भेजा वापस आई सेंड एवरीथिंग अगेन एंड अगेन राइट Hmm. अगेन सेंड बट उसको तुम रिवाइज ही नहीं करोगे रिपीट ही नहीं करोगे कहाँ से आएगा करेक्ट है Hmm. नेक्स्ट टाइम पे तुम्हारा जो डाउट है उसका मेरे को भेजना आई टेक इट नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पे ग्रुप में लिख देता हूँ राइट आई जस्ट राइट आई एम गोइंग टू टेक इट नेक्स्ट टाइम करेक्ट है But why can't you I'll write just write. 5 but सॉरी instead of 1 by 5, why can't you write 5? 3 डिवाइड बाय 15 राइट क्या होता है बेटा कैन यू डिवाइड 3 बाय 15 Yes, sir. कैन यू डिवाइड 3 बाय 15 Yes. कैन यू डिवाइड 3 बाय 15 ठीक है 15 के टेबल में 3 आता है नहीं नहीं आता ना Hmm. सो यू हैव टू डिवाइड 15 बाय 3 इज द No. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन राइट Hmm. है ना इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा पार्शियल हो गया ना 3 डिवाइड बाय 15 को क्या लिख सकते हो 3/15 लिख सकते हो 1 by करेक्ट है ना 3/15 लिख सकते हो नहीं है 3 डिवाइड बाय 15 को 3/15 लिख सकते हो हाँ 2 लिख सकते हो ना
Hmm. इवाना, Yes. कैन यू नॉट राइट 3 / 15 एज 3/15? लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? Alexa. आस्क यू सिंपल क्वेश्चन, राइट? Hmm. If I say 2 / 9, can you write as 2/9? Yes. So 3 / 15, can you write 3/15? Yes. Can you reduce to lowest term? No, Yes. it is already lowest term because 2 के टेबल में 9 नहीं आता है. Can you reduce to lowest term? Yes. Yes. 3 के टेबल में I 15 can आता है, make it 1/15, right? 1. Can you reduce 2/42? Can you reduce to lowest term? Yes. Yes, you can reduce. It is 2 के टेबल में दोनों आता है. And 10/21. Now can you reduce? No, I cannot reduce further, right? Hmm. सो मैंने क्या किया, उसको रिड्यूस किया, यहाँ पे 3/15 को 1/5 किया. वन Hmm. अपॉन फाइव का भी 15, 1/5 ऑफ, इट इज फ्रैक्शन ऑफ अ क्वांटिटी, राइट, ऑफ 25, विच इज गेट 5. यू मल्टीप्लाई पहले किया, आ गया, खत्म, राइट? सो ये प्रैक्टिस करो बेटा, प्रैक्टिस करोगे तो मालूम पड़ेगा क्या आना चाहिए, राइट? वेद ने कैसे भेजा कि मेरे को फिफ्थ में डाउट है, सॉल्व कराया मैंने, करेक्ट? ये सारी चीजें सॉल्व करो तभी आएगा बेटा, नहीं तो नहीं आएगा. ठीक है, चलो, सी यू, बाय. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir.